If this is the case, we are asking with whom the government is consulting, because they are not discussing all these FTAs in the cabinet. They are not putting any details before the parliament. They are not discussing it with opposition parties either. They are not consulting the stakeholders. And worse than that, this is a federal constitution, and they are negotiating on the state subjects, and they are not discussing anything with the state. This is highly objectionable, and we condemn this attitude of the government. A body created under the name of Turk, he has actually taken very important decisions as respect of trade and international trade on 110 issues, including IPR. This is really the worst case scenario by Manmohan Singh government. This is really anti-democratic way of dealing and doing and concluding the international treaties. We therefore demand that this is unacceptable, and we demand that the FTAs must be discussed, and all party meetings should be immediately called to discuss all these FTAs. Two, we demand that a comprehensive discussion should take place in the coming monsoon session, and till that time the EU FTA should not be concluded. At the same time, we demand that there should be a legal framework in which ratification by Parliament of all international treaties should be made mandatory. And fourth, last but not least, we want more transparent processes to be adopted by the government, in which the all the text, negotiating text, plus the impact assessment studies should be made available in the public domain, so that people can react and give their positive suggestions. So that is our demand, and we condemn this attitude, high-handed attitude of the government, undemocratic attitude of the government to conclude the FTAs and bind the country for next 20-30 years through these such negotiations, which have long and very great impact on our economic development, on our employment, on our farm, on our agriculture, and on our imports and exports. So this is very important, and that is why we have raised this issue today. And that's all from my side. If you have any questions, इस विषय पे कुछ है तो पहले करें, फिर बाद में दूसरा विषय है तो पूछें. समझ में आया वो पढ़ेंगे, और मैंने इतना तो अच्छा अध्यापक हूँ मैं. यस, नहीं वो बताएंगे. पहले इस पर किसी का कुछ सवाल है? ये पूरा छापोगे फिर पूछो. हाँ जी, उसका भी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, एक्चुअल एक्सपीरियंस वी वांट टू डिस्कस. देयर आर कंप्लेंट्स, पीपल हैव सफर्ड, द इकोनॉमिक सर्वे हैज वार्न्ड, एंड सो वी वांट फुल डिस्कशन इन द कमिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट. दो दे आर कंक्लूडेड. नहीं, सभी देशों में है. सभी देशों में अपने पार्लियामेंट की रेटिफिकेशन लगभग सभी देशों में है जहां पार्लियामेंट है. यस, यस, यस. थैंक यू. यस एंड थैंक यू. हाँ, अभी पूछो दूसरा. हाँ, अब नहीं, अरे काहे से इस्तीफे मांगेंगे? यानी काहे का इस्तीफा? यानी क्या हमें एक समझना चाहिए. देखो, मुझे पता नहीं कि अन्ना हजारे क्या भूमिका लेंगे, या शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी क्या लेंगे, क्योंकि ये सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ चर्चा करके एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है. तो हम भी आप जैसा ही घटना चक्र को देख रहे हैं. Yes, see, this committee is the creation between the agitators and the government, the 10-member panel, but it's a clear design that there are forces which want to destabilize this mechanism and thereby want to defame anybody who is in the committee. So, but as you are watching, we are also watching the situation, and so we have no comment at this moment.
I think Anna Hazare will have to make comment on this. विकास एक मिनट। जी कल उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें वरुण गांधी पर कई नेताओं ने ये आरोप लगाए कि वो मनमाने तरह से अपनी रैलियां आयोजित करते हैं और स्थानीय इकाई को भरोसे में नहीं लेते। इस बात को लेकर काफी बहस हुई। क्या वरुण गांधी को आप थे वहाँ हाँ, मैं था। क्या कोर कमेटी में? तो आप ही बताओ। क्या वरुण गांधी को पार्टी की तरफ से कोई नहीं यार, कोर कमेटी में आप कैसे जाएंगे? कमाल है यार। नहीं तो हाँ, ये पूछो कि कोर कमेटी के तो ऐसे समाचार पत्र, आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं, आप थे क्या? नहीं ऐसा था, नहीं क्योंकि नहीं जवाब इतना ही है कि समाचार पत्र में आए हर खबर पर विश्वास मत करो। नेक्स्ट। बीजेपी जो है वो दर्शक की तरह देखती है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज आप पे ही अटैक किया है कर्नाटक सरकार पे। उन्होंने कहा कि अगर संतोष हेगड़े सचमुच अच्छे लोकायुक्त हैं तो उन्होंने कर्नाटक में भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोका। ये देखो, भूषण के बाद संतोष हेगड़े, फिर अन्ना हजारे, फिर अन्ना हजारे के खिलाफ भी किसी ने एक याचिका दायर की है, तो और फिर बच्चे कौन? केजरीवाल। तो जरा देखते रहिए कि ये लोग इस मैकेनिज्म को खत्म करना चाहते, जनता के आवाज को बदनाम करना चाहते। ये भी एक सच्चाई है, ये हमें समझना चाहिए। इससे ज्यादा आज मैं कोई टिप्पणी करूंगा, मैं चाहूंगा कि अन्ना हजारे ही टिप्पणी करेंगे। हमने कहा अन्ना हजारे को कहा, और अन्ना हजारे ही बताएंगे। तो अन्ना हजारे जी बताएंगे ना, हमने नाम थोड़ा ही दिया। आप ऐसा क्या पूछ रहे हो? अरे कमेटी में ये नाम हमने थोड़ा ही दिया, कमाल है। हमने नहीं नाम दिया। ऑन ब्लैक मनी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Yes, we welcome the decision of the Supreme Court and directions of the Supreme Court to form the SIT on the larger issue of black money, because it is not only limited to Hassan Ali and one bank account in the German bank LST, but it is more than that, and it's a completely complex web which must be unearthed, and that is why we welcome the Supreme Court's directions to form the SIT. हिंदी में यही बोलता हूं, उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह से काले धन को खोजने के लिए एक एसआईटी की स्थापना का आदेश दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि काला धन केवल हसन अली के एक खाते में जमा नहीं है जिसमें 5-6 कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा ये जाल है, और केवल हसन अली का नहीं, दूसरे भी लोग हैं, और इसलिए सभी खातों की जांच हो और काला धन जो विदेशों में जमा है वो वापस आए, ये देश की इच्छा है। और इसलिए हम स्वागत करते हैं उच्चतम न्यायालय की इस आदेश का कि एसआईटी स्थापन करके इस पर पूरा शोध हो। अखिलेश जी एक सेकंड। पीएससी की जो बैठक आज हुई है, मैं पीएससी पर जरूर चुना गया हूं, लेकिन मेरी कार्यकाल 1 मई से शुरू होगा, तो 1 मई के बाद मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। ऑन व्हाट? अरे ये पार्टी का इशू नहीं है। सी, दीज आर द स्टैंडिंग कमिटीज एंड स्टैट्यूटरी कमिटीज created by the parliament. They are answerable to parliament. They report to the parliament. It is not the party committee. So the chairman and the members are entitled to take a correct decision, and I hope that the correct decision will come. But one thing is sure, the party is committed to expose the Congress corruption, and we will continue to do that. Next. अरे भाई, सारे कॉरपोरेशंस हमने जीते गुजरात में, इतनी महापालिकाएं जीती, नगर पालिकाएं जीती, ग्राम पंचायत जी की 80% अगर हमारी जीत होती है तो कांग्रेस को कहीं एक आध जगह ज़्यादा सीटें मिली तो क्या बड़ी बात है? कुछ नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं ना कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर वोटर हमें ही वोट देगा। हमारा ये प्रयास है, इसीलिए तो हम अच्छा और काम करते हैं हर रोज
कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर हमें वोट दें। Yes, governor must quit immediately because this is unheard of. A constitutional holding a constitutional position, when he is being questioned by the ED not once but twice, and so there is no propriety now left that he should continue in the office. हिंदी में नहीं, जिस तरह से उपराज्यपाल के पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए इकबाल सिंह को इकोनॉमिक डायरेक्टरेट ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं, एक बार नहीं 2 बार पूछे हैं, तो मुझे निश्चित लगता है कि उनको लोकतंत्र का तकाजा है, नैतिकता का तकाजा है कि वो अपने पद से पदमुक्त हो। हम हमेशा ही गुणों के आधार पर चयन करते हैं उम्मीदवारों का। नहीं, नहीं, आप समझ नहीं रही। ऐसा है, 80% सीटें हम जीत रहे, एक हाथ कॉरपोरेशन में क्या हुआ, 80% जीते उसका तो न्यूज़ नहीं छाप रहे, और जहां एक जगह कहीं 2 सीटें कम आई तो उसका बड़ा चर्चा हो रही है। हाँ, प्रकाश जी, मैं ये आपने अभी थोड़ी देर पहले सिविल सोसाइटीज के मेंबर का मामला उठाया था। अन्ना हजारे ने भी यही आरोप लगाया था कि उन्हें षड्यंत्र दिखाई देता है कि क्यों सिविल सोसाइटी के लोगों को ही बदनाम किया जा रहा है। क्या इन आरोपों को भाजपा सही मानती है? संभावना है उसमें सच्चाई हो सकती है? नहीं, जैसे आप स्थिति को देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं, और स्थिति साफ होने के बाद ही हम हमारी राय देंगे। हम चाहते हैं और हमें लगता है कि अन्ना हजारे इस पर कोई बयान देंगे, और उन्हीं का था, उन्होंने दिए हुए नाम थे। आपके नेताओं ने भी तो कहा है, आडवाणी जी से लेकर प्रवक्ता सभी लोगों ने ये कहा है कि आप भी एक इफेक्टिव लॉ चाहते हैं। यस, मजबूत लोकपाल, हम तो लोकपाल बिल जल्दी चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता ये मजबूत लोकपाल बनाने के रास्ते में ये चीजें उसमें रुकावट? अरे यही तो कांग्रेस का चरित्र है, एक हाथ से वो देंगे और मानेंगे कि आपकी मांग हमने मान्य की, और दूसरे हाथ से वो निकाल देंगे और बदनाम करेंगे। यही तो कांग्रेस का तरीका है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं हर रोज। नहीं, अरे ये हमारा नहीं ना, हमें सी ड्राफ्टिंग कमिटी इज द आउटकम ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द एजिटेटर्स ऑन जंतर मंतर एंड द गवर्नमेंट। There is no role of BJP in formation of drafting committee. We want, and we will stick to our demand to have an effective Lokpal bill. We want that to be put before the parliament as early as possible in this coming session. And we have assured that if effective law is made, then we will definitely cooperate. If there are deficiencies, we will criticize and give our own suggestions and amendments. So you have no view on this committee? You have no view on this committee? हाँ, because this is not our creation. जावड़ेकर जी, आपने कहा कि 80% से हमारी जीत गुजरात में, गुजरात के अलावा कहीं जीत क्यों नहीं होती? आप सभी जगह, बिहार में भी इसी ज़्यादा 90% जीत हुई, और देखते जाइए, धीरे धीरे आसाम का रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप समझेंगे कहाँ जीत हो। धन्यवाद। कोर कमेटी की बैठक में जिस तरह से कल हंगामा हुआ और नकवी जी और वरुण गांधी आमने सामने थे, इस पे क्या कमेंट है आपका? ये सही नहीं है, जो आपको खबरें मिल रही है वो सही नहीं है, इसलिए हमसे ये बहुत अच्छी तरीके से कल कोर कमेटी में चर्चा हुई, और हमारे यहाँ जैसे खुलकर सभी विषयों की चर्चा होती है, और सब में हमें एकजुट होकर जो पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश की किला फतेह करना है, उसके लिए जो तैयारी चल रही है, उसी को गति देने में कल की कोर ग्रुप ने बहुत अहम फैसले लिए हैं।